डैनियल 1 चैप्टर 2 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, बाद में हिंदी में भी ईसाई बाइबल में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमें भेद रहस्य समझने के लिए सहायता कीजिए। आपके बिना हम इन वचनों को पढ़कर भी समझ नहीं पाएंगे। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Book of Daniel, chapter 1. Daniel and his companions at the court of Babylon. First verse say, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God. And he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, and he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes' children, in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now among these were of the children of Judah Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. 9th वचन को ध्यान दीजिए। ओके, पहला क्या किया उसने? 8th वचन को ध्यान दो। पहला उसने जायजा लिया। ओके, अब मैं बंधुआई में हूँ, अब मेरा तो कुछ चलने वाला नहीं है यहाँ। ओके, जो अधिकारी है उसी का चलने वाला है, जिसका राज्य है वही कुछ करने वाला है, मेरी तो कोई हाँ में हाँ नहीं होने वाली है। उसने जायज़ा लिया, फिर उसने ढूंढ निकाला क्या करना है। तो आपको पहले से ही पता है दानियल प्रार्थना करने वाला इंसान था, तो निश्चित है उसके प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर ने 9 वचन देखो क्या दिया। नाउ गॉड हैड ब्रॉट डैनियल इनटू फेवर एंड टेंडर लव विद द प्रिंस ऑफ द यूनुक्स। ये काम उसके प्रार्थना के कारण उत्कृष्टता से उसने स्ट्रैटेजी बना के प्रार्थना करके परमेश्वर ने ये काम उसके लिए कर दिया। ठीक है। 10th verse, and the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink, for why should he see your faces worse liking than the children where are of your salt? Then shall ye make me endanger my head to the king? Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Then let our circumstances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. ये कुछ भी जो आप
चर्चा सुन रहे हैं ना, ये 8 वचन से लेकर हिंदी में आप भले तरह से समझ पाएंगे। ये कुछ भी बिना प्रार्थना का दानियल ने प्राप्त नहीं किया। दानियल बंधुआई में है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। उसके ऊपर ज़बरदस्ती है, जोर है दूसरे बादशाह का, ओके। वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता है, उसकी हाँ में हाँ करना ही पड़ेगा उसको, ओके। ऐसी अवस्था के बीच में हम रह रहे होंगे, तब हमारे अंदर का फैसला हम कैसे क्या मूव करेंगे आगे, तो प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर क्या काम करता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आमीन। फिर वहाँ देखिए क्या लिखा है आगे, 14th verse says, so he consented to them in this matter and proved them 10 days. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pearls. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Chapter 2, Nebuchadnezzar's dream, Daniel's advancement. First verse say, and in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him. Then the king commanded to call the magicians and the astrologers and the sorcerers and the Chaldeans for to shew the king his dreams. So they came and stood before the king, and the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Then spake the Chaldeans to the king in Syriac, O king, live forever. Tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. If ye will not make known unto me the dream with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill. But if ye shew the dream and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honor. Therefore shew me the dream and the interpretation thereof. They answered again and said, let the king tell our servants the dream, and we will shew the interpretation of it. The king answered and said, I know of certainty that ye would gain the time, because ye see the thing is gone from me. But if ye will not make known unto me the dream, there is but one decree of you, for ye have prepared lying and corrupt words to speak before me, till the time be changed. Therefore tell me the dream, and I shall know that ye can shew me the interpretation thereof. The Chaldeans answered before the king and said, there is not a man upon the earth that can shew the king's matter. Therefore there is no king, lord, nor ruler that asked such things at any magician or astrologer or Chaldean. And it is a rare thing that the king requireth, and there is none other that can shew it before the king, except the gods whose dwelling is not with flesh. For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men to Babylon.
And the decree went forth that the wise men should be slain, and they served Daniel and his fellows to be slain. Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. He answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah his companions, that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret. देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है आपको। जब दनियल की परख करने के लिए लाया गया था तो वो उनके नबूकदनेस्सर के जो लोग थे उससे ज़्यादा हुनर वाला, उत्कृष्टता का, और फिर उसके साथ साथ सेहतमंद, और साथ साथ उसके सारे पावर के काम, ध्यान दीजिए, मैजिशियन से भी ज़्यादा अच्छा वो काम कर रहा था। मैजिशियन से ज़्यादा मतलब मैजिशियन के पास आत्मा को चलाने का ज्ञान रहेगा, है ना, तभी तो वो मैजिशियन कहला रहे अपने आप को। तो दनियल उनके भी ऊपर चढ़ाई करके आत्मा के काम दिखाया है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये दनियल के ऊपर भी पड़ गई थी कि अब तेरा भी काम आ रहा है, अगर तूने सपने का अर्थ नहीं दिखाया तो फिर तू भी उसी तरह से मारा जाएगा। ओके, तो हर एक चीज़ में दनियल के हुनर को परखने का समय लग गया था। अब ये उसके अंदर के पावर, आत्मा के पावर का परख होना शुरू हो गया था। ठीक है, देखिए, देन 16th वर्स, देन डैनियल वेंट इन एंड डिजायर्ड ऑफ द किंग दैट ही वुड गिव हिम टाइम एंड दैट ही वुड शो द किंग द इंटरप्रिटेशन। देन डैनियल वेंट टू हिज हाउस एंड मेड द थिंग नोन टू हनानिया, Mishael, and Azariah his companions, that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret. अब उसने साथ लिया, देखो उसने अपने मित्रों की प्रार्थना में साथ लिया। ठीक है, परमेश्वर के दया को उसने मांगा, स्वर्ग में से वो खोले। हम चंगाई मांगते हैं तो डिमांड करते हैं, है ना, हम मिरेकल मांगते हैं तो डिमांड करते हैं, है ना। तो परमेश्वर के पास दनियल ने कैसा डिमांड किया? परमेश्वर की दया को मांगा। हालेलुया। अंधा बर्तिमियस ने क्या कहा? दया कर, दाऊद के संतान दया कर, है ना। तो हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। हालेलुया। फर्क है ना हमारे चाल चलन में। That Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of बेबीलोन। तो निश्चित है अब जब मैजिशियन से भी ज़्यादा बेहतरीन माना गया था दनियल को, इसका मतलब आत्मा के जगत के शक्तियों के विषय में भी दनियल को जानकारी में परखा गया था। ओके, तब ये तो आत्मा ही की तो बातें हैं, अभी सपने के बारे में, है ना। तो दनियल की भी तो बारी लग गई है कि अब वो उसके आत्मा के शक्ति का काम दिखाना है। ठीक है, तो परमेश्वर से वो क्या प्रार्थना करने के लिए मांगा? दया कर कि हम तेरे शत्रुओं के हाथों मारे ना जाए। देखिए यहाँ पे 18 वचन पढ़ा हमने, 19 पढ़ते, 19। देन वॉज द सीक्रेट रिवील्ड अंटू डैनियल इन अ नाइट विजन, देन डैनियल ब्लेस्ड द गॉड ऑफ हेवन। हालेलुया। रिवील किया था उसने, ओके, उसने प्रकट किया था, उसने उसके रास्ते खुलने का रास्ता बता दिया था। ओके, तो देखिए दनियल उसके बाद सेलिब्रेट किया, ब्लेस्ड द गॉड ऑफ हेवन। हालेलुया। तो हमको भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना के अनुसार जवाब देता है, फिर हम क्या करते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस, उछल कूद करके, नाच के, गा के, प्रशंसा करके परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं ना। Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. And he changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding.
He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth in him. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee, for thou hast now made known unto us the king's matter. Therefore Daniel went in unto Arioch, whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus unto him, Destroy not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will shew unto the king the interpretation. देखो कितना बोल्डनेस आ गया उसको परमेश्वर के सामना करने के बाद में. हालेलुया. परमेश्वर के आमने सामने बैठकर आपको परमेश्वर से प्राप्त करने का जो हियाव मिल जाता है, बोल्डनेस आ जाता है, फिर आप जगत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं. आमीन. देखो, then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah that will make known unto the king of interpretation. The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof? Daniel answered in the presence of the king and said, The secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers shew unto the king? But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the later days. Thy dream and the visions of thy head upon thy bed are these. यही कारण है मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, ओके, मुझे परमेश्वर दिखाया तो मैं समझ जाती हूँ उनके बारे में क्या करना है. हालेलुया. क्योंकि प्रार्थना करने वाले से परमेश्वर छुपाता नहीं है. ओके, देखिए क्या है 29. As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed. What should come to pass hereafter? He that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass. But as for me, this secret is revealed not to me for any wisdom that I have more than my living, but for their sake that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. तो आपको यहाँ पे सपना कैसे आता है मालूम पड़ना चाहिए. सपना आप जो सोचते हैं उसके बारे में दानियल बता रहा है बादशाह कि वो सपने में परमेश्वर ने तेरे सोच का जवाब तुझे दिया. तूने सोचा चिंता करके, और परमेश्वर ने तुझे सपने में इसका दर्शन दिया. ठीक है. Thou, O king, sawest, and behold, a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. This image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and brake them to pieces. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth. This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold, and after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth.
And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, shall it break in pieces and bruise. And whereas thou sawest the feet and toes part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided. But there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay, and as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof sure. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said, Of a truth it is that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldst reveal this secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. हम पढ़ेंगे दनियल की पुस्तक। हम पढ़ेंगे पहले वचन से 4 युवक, पहले अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। दनियल और उसके मित्र 4 युवक नबूकदनेस्सर के राजसभा में। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा के संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनेगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। हालेलुया। देखो, आप और परमेश्वर जानता है आप किस तरह से भक्ति में परमेश्वर को समर्पित है। भले ही आप अन्य जाति में हैं, ओके, लेकिन आप यीशु मसीह को जानने लगे हैं,
आप और यीशु मसीह जानता है आपके मन में आपने क्या ठान लिया है। ओके, परवाह नहीं आपके घर के लोग मानेंगे या नहीं, परवाह नहीं आपके इर्द गिर्द के हालात कैसे रहेंगे, परवाह नहीं। अगर परमेश्वर के भक्ति में आपने मान लिया कि मैं ये एक चीज़ इस परमेश्वर के लिए चढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, ओके, मुझे ये चाहिए, ये करना है, मुझे ऐसा व्यवहार, तो ये परमेश्वर को आप आदर करने का जब सोचते हैं, तब परमेश्वर और आप जानते हैं उस समय हो सकता है आपके अंदर डर उत्पन्न हो, आपके अंदर कोई प्रकार की निराशा उत्पन्न हो सकता है आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल ना हो कि आप परमेश्वर के लिए जो करना चाहते वो नहीं कर पा रहे। ओके, आपको डरना नहीं है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको अगर यहोवा परमेश्वर का ऐसा कुछ भी सेवा करने का मन हो गया और आप ध्यान रखना चाहते हैं कि मैं इसे करूँ, तो आपने क्या करना है, उसको बुक में लिख के रख देना है। आप भूल जाओ उसके बारे में। ओके, परमेश्वर उस बात को देख चुका है, वो अरेंजमेंट्स करेगा आपके लिए। ओके, आप सिर्फ उसको मन के अंदर याद रखो कि परमेश्वर मैं ये तेरे लिए करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। जहाँ लंबा समय आप उसको याद रखें, ठीक है, नहीं याद रहा कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे वो करवाएगा। आमीन। तो आपको असंभव नहीं है जब आप यहोवा परमेश्वर के बारे में कुछ भी मन में ठान लेते हैं। लेकिन यहाँ दानियेल के बारे में कुछ अलग है। देखिए, अब ये सारी योजना वो बंधुआई में जाके कर रहा है। देखो, परमेश्वर के जन को सताना, केवल परमेश्वर अगर आज़ादी देता है तभी ऐसा हो सकता है। अगर परमेश्वर के जन को कुछ भी करना सिर्फ परमेश्वर के आज़ादी मिलने के ऊपर डिपेंड है। ओके, अगर अय्यूब को सताया जाना था तो अय्यूब के लिए परमेश्वर ने आज़ादी दे दी थी शैतान को कि जा तू सता सकता है, लेकिन उसके प्राण को हाथ नहीं लगाना। लेकिन फिर अय्यूब को उसने दूसरे हाथ से उठा भी लिया, 2 गुना उसके दुख के बदले में उसको सुख दिया। ओके, तो आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता ये मुश्किल कठिन समय के अंदर कभी खराब नहीं होता है। परमेश्वर पता है, परमेश्वर जानता है आपको किस हद तक शैतान को सौंप देना है या शैतान के हाथों में आप कितने हद तक परखने के लिए छोड़ देना है, वो जानता है। ओके, आपके हद से बाहर वो आपको परेशान होने नहीं देगा। आमीन। और दूसरे हाथ से तुरंत कोई ना कोई आपको संभाल लेगा, कोई भी परमेश्वर का जन आके आपको संभाल लेगा या फिर आप अपने आप को संभाल लेंगे। ओके, लेकिन परमेश्वर मरते हुए समय तक आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, शमशोन के अंदर से परमेश्वर निकल चुका था, उसकी उपस्थिति खत्म हो चुकी थी, फिर भी शमशोन की आवाज़ को परमेश्वर ने मान लिया। ओके, उसको आंखें दी, उसने पलिश्तियों को ख़त्म कर दिया, उतनी शक्ति उसको दी और फिर बाद में वो मर गया। ओके, आदम और काइन के बारे में भी परमेश्वर ने, आबेल और काइन के बीच में भी उनके ऑफरिंग्स लेने के लिए, बलिदानों को लेने के लिए, अर्पण लेने के लिए उसने अपने आप को उपस्थित रखा उनके लिए। ओके, किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है वो भी उसने फैसला दिखाया कि मैंने आबेल के लेना है और काइन के मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो काइन के नहीं चाहिए ऐसा नहीं लिखा, लेकिन स्वीकार किसका किया उसने? आबेल का। मतलब आप जब गलती कर चुके, आप जब मसीह नहीं है, आपके द्वारा कुछ अच्छे भले काम नहीं हुए मसीहों के बारे में, लेकिन अभी आपके बारे में कुछ है मन के अंदर कि आप मसीहों के संगति में कुछ अच्छा चीज़, अच्छा दिन, अच्छा समय आप भी अपना उसके अंदर भाग रखना चाहते हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर उस बात को देख चुका और वो निश्चित पूरा करेगा आपके लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप जो ठान लिए उसके विषय में है। दानियेल के बारे में कैसा है देखिए, ये बंधुआई में था। बंधुआई में जाने के बाद में उसके पास कोई फ्रीडम नहीं था, उसके पास कोई अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो अपने मर्जी से कुछ कर सके। ओके, और वहाँ पे फ्रीडम के अंदर वो नबूकदनेस्सर के बंधुआई के अंदर उसको जो वो लोग कहेंगे वही करना पड़ेगा। ओके, हम इस जगत में एक सरकार के अधीन हैं, वो सरकार कहेगी हमको वैसा करना पड़ता है ना, नियम पालन करना पड़ता है। कभी कभी स्कूल कॉलेज के अंदर हम रहते हैं तो स्कूल कॉलेज के नियम पालन करने पड़ते, कोई ऑफिस में है तो उसके नियम पालन करने पड़ते।
ओके, कोई चर्च कलसिया में है तो उसके नियम पालन करने पड़ते हैं, तब हम अपनी अक्लमानी नहीं चला सकते हैं, है ना। अब चाहे जितने होशियार हो, चाहे जितने कुछ भी हो, लेकिन वो अपने घर के वहाँ पर आप जाते हो तो टेरिटरी मायने करता है। ओके, इसी को कहते हैं क्षेत्र। ओके, ये क्षेत्र मायने करता है, जिसके अंदर आप खड़े हो उसके अधिकार का आप पालन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये अधिकार का पालन करने के वक्त में दानियल को पता है भाई मेरा तो कुछ बनने वाला नहीं है यहाँ पर, ओके, ये तो अपने ही चलाने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे चुनाव करके लाने के लिए बोला था जो बहुत अच्छा है, निर्दोष यानी दानियल निर्दोष था, ओके, सुंदर यानी दानियल सुंदर था, ओके, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण यानी दानियल सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण निकला था, ओके। उसके साथ साथ शद्रक अबेदनेगो और शद्रक मेशक अबेदनेगो भी उन्हीं के समान थे, तभी तो उसके साथ वो लाए गए थे, है ना। और ज्ञान में निपुण और विद्वान थे ये लोग, है ना, और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य थे ये लोग, ओके। इतना सब कुछ उनके अंदर है, लेकिन उनके अंदर यहूदियों का शास्त्र नियम पाला जाता था, पालन किया जाता था, है ना। लेकिन ये नबूकदनेस्सर कसदियों की बात को उनके अंदर रखना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लैश हो गया था। हम तो जाते हैं गवर्नमेंट नौकरी में है, लेकिन पालन वहाँ पर क्या होता है, उनके देवी देवताओं का पालन होता है, वहाँ पे उनके रीति रिवाज पालन किए जाते हैं, दिन दोपहर ठहराए जाते हैं, वहाँ पे उनके फेस्टिवल माने जाते हैं, है ना। तो हर प्रकार के जगह में आप अपने तरीके का भक्ति नहीं चला सकते हैं, ओके, आपको उनके अधीन होना पड़ता है। तो ये दानियल ऐसा ही था, उसके पास तो यहूदी भक्ति थी और ये लोगों को चाहिए था कसदी भक्ति, ओके। तो उनका और ये दानियल का मेल तो होना असंभव था, लेकिन उनको वैसे ही चुन के लाया है कि वो कसदियों के बीच में रहकर कसदियों के सेवा में लग जाए, ओके। तो उसका आज्ञा क्या था, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उनको प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। अब इनका खाना पीना में भी ऐसा कुछ रह सकता है जो यहूदियों को मना है। तो दानियल शद्रक मेशक अबेदनेगो तो पूरे अटक गए, बंधुआई में है, कोई अधिकार नहीं कर सकते, कोई अधिकार को हम ना नहीं कर सकते हैं, अब क्या करें, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ खास तरीका बताने वाली हूँ जो दानियल का कैसा रास्ता खोला उसने, ठीक है। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। तो अब देखो यहाँ पे बोला गया ये खोजों के प्रधान, यानी उनका जो जीवन था, ओके, वो उनको खोजा बना दिया गया था, ओके, उनको जानबूझकर खोजा बना दिया गया था, क्योंकि उनका ध्यान उनका ध्यान नबूकदनेस्सर के राज्य की सेवा में बना रहे और कोई कुछ नहीं करना है। तो आपको एक समझ में आता है, ये परमेश्वर के जन है, परमेश्वर की ये लोग हैं। परमेश्वर सोया था क्या जब ये लोगों का ऐसा किया जा रहा था, बराबर है ना। तो परमेश्वर ने तो इनके बंधुआई में जाने का बात उसी वक्त बोल दिया था, हमने पढ़ा है उसको, है ना, इतिहास की पुस्तक में या उस दूसरे किताबों में हमने पढ़ चुके हैं, पुराने नियम में, कि ये तो ऑलरेडी परमेश्वर ने बोल दिया, तूने क्या किया है, तूने अपने राज घराने के अंदर का सब व्यवस्था तूने तेरे शत्रु को दिखा दिया है। अब यही तेरा शत्रु तुझे बंधुआई में लेकर जाएगा और तेरे बाल बच्चों को भी बंधुआई में लेकर जाएगा, बोला था ना। और वहाँ पे क्या होगा वो भी वहाँ पे दे दिया था, वहाँ पे उनकी ये हालत होने वाली है। एक छोटा सा गलती था और ये हालत आ गई थी कि यरूशलेम के लोगों को बंधुआई करके लेकर गए थे, इजरायली लोगों को बंधुआई करके लेकर गए थे, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपका पहला ही एक छोटा सा पूर्वजों का गलती और आप उसके मार खा रहे होते, ओके, आपका पूर्वजों का कुछ लेखा जोखा आप उसके बीच में पिस जा रहे हैं, समझ में आया। लेकिन यही बात फिर यीशु मसीह में आने के बाद में ख़त्म हो जाता है,
ओके, यहाँ पे अब देखिए ये खोजा बना दिया गया है। दनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दनियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाल का मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। ओके, देखिए अब उसने ये देखा, उसने बादशाह को तो कुछ बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर जो अधिकार करने के लिए प्रधान था उसके साथ उसने बात चलाई। ओके, उसने अपने मन के अंदर पहले तो ठान लिया और फिर बाद में उसने क्या किया होगा मालूम? ये सीक्रेट है, उसने प्रार्थना की होगी, लॉर्ड जब मैं उसके सामने जाऊंगा ना बोलने के लिए तो उसको मेरी हाँ में हाँ करा दे, नहीं तो वो मेरा विरोध करेगा, तो उसको हाँ में हाँ करा दे और फिर मेरी बात वो मान लेगा तो मैं तेरे आज्ञा पालन कर पाऊंगा। हालेलुया। ये सीक्रेट था दानियल का। ओके, ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो हर एक का यही सीक्रेट था। ठीक है, कि वो इकट्ठे एक दूसरे के प्रार्थना में हेल्प लेते थे और अपने रास्ते वो उस बंधुआई में भी पवित्रता का जीवन वो संभाल रहे थे, यहूदी जीवन वो संभाल रहे थे। ओके, किसको आप बातें सुनाएंगे, है ना? किसको आप बहाने सुनाएंगे कि मैं तो ऐसा था इसकी वजह से ऐसा किया, नहीं नहीं वो तो ऐसे थे इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, किसको सुनाएंगे हम? ओके, ये तो खुला दिखाई देता है कि ये दनियल, मेशक, शद्रक, अबेदनगो सारे लोग यहाँ बंधुआई में पड़े, उनके शरीर के ऊपर भी अधिकार नहीं था, उनके शरीर के अंग काट दिए जा रहे थे। ओके, फिर भी वो इनकार नहीं कर पा रहे थे, इतने ज़्यादा खतरनाक गुलामी में उनको ले लिया था। और वहाँ पे ये लोग बोल रहे कि अब ना प्रभु तू ऐसा कर, जब मैं उनको बोलूँगा तो वो मेरी मान ले। ओके, तो ये प्रार्थना का जवाब है, परमेश्वर देता है। ओके, क्या प्रार्थना किया होगा उसने? जब मैं उसको बोलूँगा प्रधान को तो उसने मुझे मान लेना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है 8 वचन। परंतु दनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के, तो क्या उसके शरीर के अंग काट दिए जा रहे थे उससे अपवित्र हो रहा था क्या वो? इसके बारे में कुछ नहीं था, उसको उसके बारे में चिंता नहीं थी, उसको खाने पीने की व्यवस्था बड़े पैशनेटली वो संभाल रहा था। समझ में आया? कुछ लोग ऐसे मसीह हैं जिनको धन संपत्ति की चिंता नहीं है, गया तो गया, रहा तो रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कोई प्रियजनों की चिंता नहीं है, अगर गए तो गए, रहे तो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों के वो बाहरी पैशनेट रहते हैं कि नहीं ये तो सेवा मैं करके ही रहूँगा, इसके अंदर तो मैं उतर के रहूँगा, इसको तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, ये तो पालन करना ही है, ये आज्ञा पालन तो करना ही है। कुछ ऐसे है जगह, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जिसे कहते हैं, मजबूती, ओके, जो वो नहीं मान सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का दनियल के अंदर का मजबूती खाने पीने के ऊपर ज़्यादा था। ओके, वो यहूदियों के खाने पीने को छोड़ना नहीं चाहता था। आप लोग भी, हम लोग भी मसीह होने के नाते हम अन्य जातियों का कुछ भी खाना पीना नहीं ले सकते। अगर वो उनके भक्ति में से लेकर आए होंगे तो हम उसको नहीं लेते हैं। ओके, हम पालन करते हैं, आज्ञा पालन, है ना? तो हमारी वो लोग मान लेते हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, वो लोग नहीं खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन दनियल के यहाँ वैसा नहीं था। दनियल को तो कंपलसरी था, वो उनका मान लेना चाहिए, उनको खा लेना है वो सब कुछ। ओके, अब मुसीबत है, वो शरीर के अंग काट दिए जा रहे, उससे नहीं डर रहा था, उससे उसको प्रॉब्लम नहीं था, खाने पीने से उसको प्रॉब्लम था कि ये लोग जो खाते हैं हमारे लिए तो वो नहीं खाने की बातें हैं, वो व्यवस्था के विरोध जा रहे हैं, तो ये अंग काटना ये वगैरह तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्या? ओके, खाने पीने के बारे में क्या? ओके, यहाँ पे क्या आ गया है? परंतु दनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हालेलुया। तो उसके अंगों को अपाहिज कर दिया होगा, कुछ जैसे उसमें से अभी कोई फीलिंग्स नहीं होगा, ऐसा कुछ कर दिया होगा, कुछ भी किया होगा ऐसा, है ना? हम नहीं जानते कि उसको अंग काट दिया या क्या किया था, हम नहीं जानते हैं। ओके, लेकिन उसको खोजा बना दिया था।
ओके, जैसा स्त्री के अंदर से गर्भाशय निकाल दिया तो वो बस एक मिट्टी का पुतला है, उसका जो रीज़न है मेन बच्चे जन्मने का वो तो ख़त्म हो गया उसका फिर, है ना। तो इस तरह से उनके अंदर का कुछ ऐसा खास रहेगा जो अगर हटा दिया तो वो लोग पुरुष नहीं रहते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से उनका लाइफ में कुछ कर रखा होगा, तो उससे उसको प्रॉब्लम नहीं था। उसको प्रॉब्लम किससे था? खाने पीने से अपवित्र नहीं होना है, ठीक है। तो उसने विनती किया, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान, देखा परमेश्वर ने, इसका मतलब पहले तो उसके मन के अंदर ठानी हुई बात वो और परमेश्वर जानता था, है ना। और वो और परमेश्वर बैठ के मिल बांट के उन्होंने पक्का कर लिया, देख खुदा जब मैं जाऊं तो तूने ये करना है। तो वो खुदा ने क्या किया, उस प्रधान के अंदर से उसको सोच दी और उसके अनुसार उसने काम किया। हालेलुया। देखो यहाँ परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। कभी कभी क्या हो जाता है, आपने नहीं मांगा होता है कि कोई आपको फेवर करे, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं, आप आनंद करते हैं, शांति में रहते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर खुद आपके खातिर लोगों को आपके फेवर में खड़ा कर देता है। ओके, तो कभी कभी आपको मालूम भी नहीं, आपने मांगा भी नहीं है परमेश्वर से, फिर भी परमेश्वर आपके फेवर में लोगों को खड़ा कर देता है। और कभी कभी आपको मांगना पड़ता है कि लोगों का फेवर आपको मिले परमेश्वर, ओके, क्योंकि आपके कुछ काम बनने हैं, तो ठीक है। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुँह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। ओके, अब ये होता है जब कोई परमेश्वर की हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके हम चले जाते हैं। प्रार्थना करके चले जाने के बाद में हमको पता है अब हमारा परमेश्वर सामने वाले इंसान के अंदर कुछ काम करेगा और हम जो बोल रहे हैं वैसा कुछ हमने मांगा है वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। ये हम तो सोच चुके हैं, लेकिन सामने वाला इंसान ये नहीं जानता है, तो वो हमेशा ही 10 बार सोचेगा हमारी बात मानने के लिए, ओके, क्योंकि उसके ऊपर उसके अधिकारी बैठे हुए हैं, उसके अधिकारी का डर उसके अंदर है। वो क्या बोल रहा है, तू तो बोल रहा है ठीक है, लेकिन अगर मैंने तेरी बात को माना तो मेरा तो वाट लगा देगा, ओके, नबूकदनेस्सर मेरी तो हालत खराब कर देगा, है ना। तो उसके पास वो दृष्टिकोण नहीं है देखने के लिए कि दानियल परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करके मांग रहा है, ओके, और इसके लिए उसके मान लेने के लिए मेरे पास अब एक रास्ता हाँ करना ज़रूरी है। लेकिन वो डरता है क्योंकि उसको पता है ये तो जोखिम वाली बात है, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो मुझे बस मरवाने का प्लान कर रहा है ये तो ओके। 11 वचन, तब दानियल ने उस मुखिए से जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को, अब ये भी तरीका परमेश्वर ने दानियल को दिया, ओके। अब दानियल के चैलेंज थी उस इंसान को, प्रधान को, ओके, ये चैलेंज था, ये चुनौती था, ये ना उस इंसान ने देखा था कभी ऐसा तरीका कि ऐसे करके भी लोग इतने हट्टे कट्टे होते हैं, और ना ही दानियल ने इसके बारे में किसी को बताया था कि ऐसा करने से कुछ होता है करके, ओके। लेकिन उसके पास कुछ तो अपने यहूदियों की जानकारियाँ रही होगी, जहाँ पे वो लोग युद्ध करने जाते हैं तो किस प्रकार से अपने शरीर, अपने ताकत को उभार कर लाते हैं, कैसे वो आत्मा के शक्तियों को पहचानते हैं, ओके। ये कारण है कि वो यहोशू के पुस्तक पे आप पढ़ते हैं कि सूरज को उसने दिन ढलने से उसने रोक के रखा, क्योंकि वो आत्मा के शक्ति को भी जानते हैं, ओके, वो आत्मा के शक्ति का विरोध करना भी जानते हैं, ओके। यहाँ पे दिया है ना कि जो जादूगर लोग थे शद्रक में ये नबूकदनेस्सर के, उनसे भी ज़्यादा ज्ञान इसके पास निकला, दानियल के पास, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है, उनके अंदर ये आत्मिक ज्ञान भी था,
ओके, ये आत्मिक ज्ञान भी था। और देखो वहाँ पे भी था ना शाऊल और दाऊद। शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा था, तब योनाथन और दाऊद जब बात कर रहे थे, वहाँ पे क्या लिखा, कल का दिन नया चांद का दिन है। तो वहाँ से दाऊद हट गया, वो बैठा नहीं खाना खाने के मेज पर, क्योंकि शाऊल उस दिन उसको मारने का प्लान कर लिया था। ओके, तो ये सारा चीज़ वो लोग जानते हैं, अन्य जाति कौन से दिन क्या करते हैं। और ये यहूदी था दाऊद, फिर भी शाऊल के हाथों से बचने का उसको रास्ता निकालना पड़ा। ओके, तो हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ये अंधेरे के शक्तियाँ कौन से समय क्या काम करती है, उसके नीचे से हमको निकल जाना है। ओके, उसके नीचे से उसको पार करके निकल जाना है हमको। ओके, तो वो समय में अगर आपको मालूम नहीं है तो वो ही हो गया ना, फिर मूर्ख क्या करता है, सामना करता है संकट का और मारा जाता है। ठीक है, तूफानों का सामना करना है निश्चित है, लेकिन हमको ये बात भी ध्यान देना है कि हमारा विरोधी है। ओके, हमारे विरोधी के भी कुछ समय लगे हुए हैं। ओके, हमारे विरोधी के अंदर से निकलने वाले समय हमको बचाकर अपने आप को उस रास्ते से निकाल देना है। ओके, इसके लिए हमको बारंबार ये क्लेम करना पड़ता है, हमारे सारे समयों का प्रभु यीशु मसीह है, हमारे सारे समयों का प्रहरों का प्रभु यीशु मसीह है। ओके, हमारे लिए कोई और प्रभुता हम पर राज्य नहीं कर सकती है। हम कौन से भी प्रहर में क्यों ना हो, हम कौन से भी घड़ी में क्यों ना हो, हम जब भी पुकारेंगे यीशु का नाम, उस घड़ी के अंदर की शक्तियों को चुप बैठना पड़ेगा और यीशु को रास्ता देना पड़ेगा। हालेलुया, हमारे सामने उस घड़ी की शक्तियों के काम बंद हो जाएंगे और हमारे रास्तों का काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया, तो इस प्रकार से हमको प्रभुता करना है हर घड़ी के ऊपर, हर एक समय और दिन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये जानकारियाँ दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी रखनी पड़ी थी कि युद्ध के तैयारी में क्या खाया जाता है, कैसे शरीर को बनाया जाता है, ये सब उसके पास भी जानकारी थी। तो आपको टैलेंटेड होना पड़ता है, स्किल्ड होना पड़ता है। मसीह होने का मतलब ऐसा नहीं अरे गहरे अंधे गूंगे बहरे जैसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, उसके अंदर भी आपको ट्रेन होना पड़ता है। ओके, ये सारे लोग जो आप देखते हैं, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री, प्रॉफिट भजिंदर सिंह जी मिनिस्ट्री, जब आप देखते प्रॉफिट ह्यूबर्ट मिनिस्ट्री, जब आप देखते प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल मिनिस्ट्री, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम मिनिस्ट्री, ये ऐसे अहरे गहरे गूंग के अंधे बहरे नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग लिया। यहाँ पे टीबी जोशुआ, प्रॉफिट टीबी जोशुआ, स्कोएन मिनिस्ट्री, ये ऐसे ही नहीं है, इन्होंने ट्रेनिंग लिया है अपने अंदर से। ओके, उन्होंने सीखा है बात को बैठकर, बिल्कुल सिमिलर टू दानियेल उन्होंने सीखा है। ओके, वो अभ्यास किए हैं, वो समझे हैं, कुछ सच्चाई इन्फॉर्मेशंस उन्होंने कलेक्ट किया है, और तब जाके वो मिनिस्ट्री के अंदर का काम उनका बढ़ता गया, क्योंकि उनको उसके अंदर से होकर निकल जाना समझ में आने लगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपको मालूमात होनी चाहिए। अगर अन्य जातियों के लोग दबाव डालने लगे तो आप उसके दबाव छोड़कर आपके इंतज़ाम क्या है वो बताना आपको आना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। तो देखिए, ये टैलेंट था दानियेल के पास, उसने ये स्टडी करके रखा था। वो कहीं गया नहीं था युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए, लेकिन उसने जानकारी लेके रखा था। वो अभ्यास करने वाला इंसान था, वो स्टडी करने वाला इंसान था। ओके, उसने शास्त्र को स्टडी करके रखा था। इसकी वजह से उनके बंधुआई का कितना लंबा समय है, 70 साल और कुछ दिन, ऐसे उसका समय उसको पता चला। तो बराबर उसके बीच में उसने परमेश्वर से छुटकारा मांग लिया और हो गया उन लोगों का समय में छुटकारा। ओके, तो ये अभ्यास का समय था उसका, उसने अभ्यास करके रखा था युद्ध के अंदर जाने वाले लोगों का खाना पीना कैसे रहता है और किस तरह से उनके शरीर बनते हैं। वो उसके अंदर हो चुका था, बात वो स्टडी हो चुका था, तो उसने उसी के ऊपर बेस पकड़कर अपने लिए अब इस्तेमाल कर लिया उसको। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन माइंड मैटर्स, इन्फॉर्मेशन
हमारे अंदर का इन्फॉर्मेशंस मायने रखता है। ओके, ये नहीं कि आप मसीह है और अब बस ऐरे गहरे अंधे गूंगे बहरे जैसे बने रहे, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानिय्येल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने को आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानिय्येल और हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, देखा, बुद्धि और हर प्रकार की समझ, हर प्रकार की समझ मतलब उसके अंदर जो आत्मिक समझ होनी चाहिए उसके विषय में भी एडिशन हो गया, क्योंकि उन लोगों के बीच में मैजिशियंस भी थे, जादूगरी करने वाले लोग भी थे, दुष्ट आत्माओं को चलाने वाले लोग भी थे, आत्मिक जगत की छानबीन करने वाले लोग भी थे। उनके बीच में ये निखर कर आए। ओके, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। यानी जो स्पिरिट लेवल में उनको सॉल्यूशन चाहिए, जो आत्मिक दर्जे में उनको छुटकारे चाहिए, मसले हल होने चाहिए, उस मसले हल करने की जगह में भी यही लोग ज़्यादा निपुण ठहरे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानिय्येल, यही लोग ज़्यादा निपुण ठहरे। समझ में आया आपको? तो ये मत सोचिए कि आत्मा का जगत पुराने नियम में नहीं था, वहाँ पर भी काम किया जा रहा था। आत्मा के जगत की भी जानकारी यहूदियों को रखनी पड़ती थी। ओके, तो ये यहूदियों को उन रीति से भी हमले होते थे, तो उन हमलों को किस प्रकार से हम उसका मुकाबला करना है वो जानते थे। ओके, और दानिय्येल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। नबूकदनेस्सर का स्वप्न 2 अध्याय पहले वचन से। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, देखो राजा किसको बुला रहा है, ज्योतिषी, तंत्री, ध्यान दो। ओके, तो न हो, और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। हालेलुया। तो आप इसके बीच में दानिय्येल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को गिनती किया जाता है। ओके, उसके पास ये जो झुंड है, इसी के अंदर दानिय्येल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मतलब इसके अंदर अभी दानिय्येल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी हाजिर होना है। ये उन्हीं के टोली है, ओके, जो राजा की सेवा कर रहे थे। अब उनके आदेश से, उसके आदेश से इनको भी उसके सामने जाना पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए, इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत
स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। देखा, ये स्पिरिचुअल में वो चेंज करने की युक्ति कर रहे थे। इस तरह से वो बादशाह को फुसला रहे थे और बादशाह उसको समझ गया कि ये समय कटवाने के लिए चल रहा है। उनको पता है ये समय कट जाने के बाद राजा बेअसर हो जाएगा। ओके, देखिए 9 वचन, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। देखा, तो जो उनको पता है किस समय में बादशाह का मार डालना ओके ठहराया जाता है, वो समय बीतने तक वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसको बातें करते 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 वो समय कटवा देंगे। जैसे ही वो समय कट जाता है तब वो शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा, उस घड़ी का प्रभाव कम हो जाएगा, और जैसे ही वो घड़ी का प्रभाव कम हो गया फिर उसका मन बदलना आसान हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से वो अपने आप को बचाने की युक्ति कर रहे थे। आत्मिक जगत में उनकी स्टडी थी उसके आधार से। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले। गोष्ठी यानी यूनिटी किया होगा, तुमने प्लान बनाया होगा कि ये जो कड़क समय है, इविल टाइम, बुरा समय जिसे कहा जाता है, वो टाइडिंग, वो शक्ति का प्रभाव खत्म होने तक ओके तुम लोग ऐसे ही कुछ तो करोगे और धीरे 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 वो समय बीत जाएगा और फिर मेरे मन में चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि वो प्रहर बीत गया। ओके, तो तुम लोगों ने ये युक्ति किया होगा, मुझे पता है। ओके, तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। तो उन्होंने भी मान लिया कि ये ऐसा असंभव कुछ करने के लिए बोल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ओके, और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में नहीं है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, और दानिय्येल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को तो परमेश्वर को जानते थे। ये फर्क पड़ता है ना। लोगों को लगता है ये तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तो हमको पता है, तो हमारा परमेश्वर कर देगा जो चाहिए वो, बराबर है ना। लोग वहाँ पर जाके रुक जाते हैं जहाँ पर उनको मालूम पड़ता है ये तो सिर्फ देवता लोग ही कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। ओके, वहाँ पे जाके वो रुक जाते हैं, लेकिन हम उसके पार जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर तो परमेश्वर मौजूद है। तो हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम तो पार हो चुके काम करने में आगे निकल जाते हैं। हालेलुया। और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, हुआ नहीं था, होने पर था। ठीक है, तो अब इसके बीच में दानिय्येल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो भी आ गए थे। ओके, और लोग दानिय्येल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। हालेलुया। तो उनके जान पर पड़ गई थी। ओके, परमेश्वर द्वारा दानिय्येल पर अर्थ प्रकट करना। तो ये रहा स्पिरिचुअलिटी। तो आत्मिक जगत की बात को भी आप परमेश्वर से मांग सकते, पूछ सकते, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा। और लोग सोचते हैं ये तो सिर्फ देवी देवता ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जवाब है, वो परमेश्वर तो हमारे ही अंदर है। ओके, और परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। आमीन। परमेश्वर द्वारा दानिय्येल पर अर्थ प्रकट करना। 14 वचन से आगे,
तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ, ओके, सोच विचार करके, उसको बड़ा प्लान है उन लोगों के ऊपर मार डालने का, उनकी आज्ञा निकल चुकी है, बचने का है अभी दानियल को, ओके। अभी उनके बारे में सोचने का है कि क्या करें, अभी इसके हाथ से कैसे छुड़ाए जाए हम, ओके। तो हमारा भी हालत ऐसे ही होता है, जब शैतान के राज्य की प्रबलता हम पर बढ़ने लगती है, तब हम समझते हैं भाई ये लोग तो ऐसे ही करने वाले हैं, तो अब हमको बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए, तो हमको भी सोच विचार कर निकलना पड़ता है। हालेलुया। देखो, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हकीम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? ओके ठीक है। तो आप जब सामना कर रहे होते हैं ना दुष्टता के प्रबल हो रहे शक्तियों के विरोध में, जो शक्तियों का झुंड लेके जो लोग आपका विरोध करने के लिए खड़े हैं, तब आपका सामना हो रहा होता है। उस सामना होने के वक्त में आपको पता है ओके उन्होंने क्या निकाला है क्या आज्ञा निकाला है, ओके, यानी क्या आदेश लगाया है, ओके, आपको जानकारी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, वो काम करने वालों में जो प्रधान है, उसके सामने आपको सोच विचार कर बुद्धिमानी के साथ खड़े होना पड़ता है। हालेलुया। और फिर उस कैसा क्वेश्चन किया, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकले? यानी उसको अभी तक कुछ मालूम ही नहीं, ऐसा उसने बताया, ओके, कि ये क्या तरीका है, हमने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, अभी तक हम अब ड्यूटी पर आए भी नहीं है, सीधा रेसिग्नेशन लेटर लेकर आ गए, क्या प्रॉब्लम क्या है? जबकि उसको पता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर दिया है, तो इतने स्टाफ को कम कर देने का आदेश निकल आया है, ओके। जब स्टाफ कम करने का आदेश निकल आया है, मालूम है, फिर भी वो बोल रहे हैं ऐसा क्या प्रॉब्लम है, अभी तक हम ड्यूटी पे पहुंचे भी नहीं है और सीधा रेसिग्नेशन का लेटर देने आ गए आप लोग, ओके। तो इस तरह से सोच विचार कर बुद्धिमानी के साथ शुरुआत की उसने, ओके। तब अर्योक ने दानियल को उसके भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। हालेलुया। तो ये आदेश क्या कारण से निकला था, वो कारण को लेकर फिर दानियल ने रास्ता लेना शुरू कर दिया। तो आपका भी ऐसा निकल सकता है नोटिस, चलो ये जगह में से इतने स्टाफ कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ये नोटिस आना है, इसका कारण क्या है, सो एंड सो है, ओके। तो स्टाफ कम करने का कारण देखो आप, और आप अपने बॉस के साथ बात कर सकते हैं, ओके, उनको बोल सकते हैं रुक जाओ, ये कारण है ना, तो इस कारण का हल और कुछ तो निकल सकता है, ठीक है, तुझे ये स्टाफ कम करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा हल और जगह भी मिल सकता है तुझे, ओके। तो इस तरह से ये बादशाह क्या कर रहा था, कुछ स्टाफ को मार डालने की घोषणा कर दी थी, और दानियल, मेशक, अबेदनगो भी उसके अंदर थे। तब उसने क्या बोला, रुक जा, तू मार मत डाल, थोड़ा समय दे हमको, क्योंकि तेरे इस कारण का हल मेरे पास, मैं परमेश्वर से पूछ के आता हूँ। समझ में आया? तो आपको चैलेंज को हैंडल करना है, आप चैलेंज के नीचे दब के मर नहीं जाना है, चैलेंज को हैंडल करने वाले आपको बनना है, ठीक है। चैनल दुष्टता के जगत से आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे रौंदने के लिए आपको, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर है, ये आपको भूलना नहीं है, ओके। जो चैलेंज लगा रहा है आपको उसका सामना करना पड़ेगा, आपको कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताना पड़ेगा। आमीन। 17 वचन क्या लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। तो तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा, यानी भेद में था वो,
ओके, जो भी कारण है आपको परेशान करने का, जो भी कारण है आपके लाइफ में कुछ भी होने का, तो उसका कारण का जो वो कारण है उसका सॉल्व करने का आपके ऊपर जो पीड़ाएं लगा दी गई है, तो वो पीड़ाएं आपके ऊपर इसीलिए लगाई गई है क्योंकि वो लोग आपको सॉल्व मतलब सॉल्यूशन समझते हैं, आप उसका आंसर है ऐसा उनको लगता है, लेकिन आप उसका आंसर नहीं रहते हैं, परमेश्वर उसका आंसर रहता है। और परमेश्वर उस आंसर को भेद में रखा होता है, रहस्य में रखा होता है। ओके, रहस्य में रखने के कारण लोगों को आप उसके शिकार होने के लिए दिखते हैं। ओके, लोगों को लगता है आपको मार डालेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों को लगता है आपको कुछ करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों को लगता है आपको ऐसे ही रखेंगे तो कुछ हो जाएगा। आप प्रॉब्लम का आंसर नहीं है। ओके, प्रॉब्लम का आंसर क्या है? सीक्रेट। समझ में आया? प्रॉब्लम का आंसर सीक्रेट है और सीक्रेट परमेश्वर के पास है। हालेलुया। देखो क्या है, भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। और इसके लिए फिर हम क्या करने लगते हैं? जब भेद प्रकट हो गया ना, फिर हम आनंदित हो उठते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर को ऑफरिंग टायत में खुश करते हैं, परमेश्वर के हाथों के कामों को, हम रचना को हम प्रशंसा करने लगते हैं। ओके, क्या है? परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वही जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझ से मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा को की बात बताई है। हालेलुया। तो ये देखिए, इस प्रकार से जब हमारे काम बन जाते हैं तो हमारे मुंह चपर 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 चलने लगते हैं ना। तो आप लोगों को सुनने को मिलता है फिर इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं, इतने लंबे लंबे शब्द, इतने ऊंचे ऊंचे शब्दों को लगा लगा कर प्रार्थना कर रहे हैं हम, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ भेद परमेश्वर ने जाहिर कर दिए, जिसके कारण आनंदित होकर हमने ये प्रार्थनाओं को रिलीज किया। आमीन। राजा को स्वप्न और उसके अर्थ का बताया जाना। 24 वचन से आगे। तब दानियेल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न करे, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियेल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियेल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। ये सीक्रेट है। हर एक मनुष्य जो आज पृथ्वी के ऊपर संघर्ष जी रहा है, संघर्ष कर रहा है, एक सीक्रेट है, भेदों का प्रकट करता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो जिस इंसान के अंदर है वही उसका आंसर है। ओके, वही उसका आंसर है और वही के आंसर को आपको स्वीकारना पड़ेगा। ओके, वो प्रचार से आपको मिल सकता है, गीतों से आपको मिल सकता है, अनुग्रह परमेश्वर का जैसा चलाएगा वैसा आपको वो मिल जाएगा, अगर आप अन्य जातियों में है तो। ओके, तो जवाब आपके तंत्र मंत्र पंडितों में नहीं है, ज्योतिषों में नहीं है, भावी बताने वालों में नहीं है। जवाब भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, उसके पास वो है। ओके, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया
ओके, तो उसका विचार सपना बन गया। समझ में आया? जब आप विचार लाते हैं, पलंग पर पड़े हुए विचार लाते हैं, आपके नींद में उस विचार के बारे में आत्मा के जगत में उठा लिया जाता है। ओके, आत्मा के जगत में आपको मॉनिटर करने वाला जो आत्मा रहेगा, आप पलंग पर पड़े हुए कौन सा बात आपके सोच में आया है, वो ही बात को लेकर फिर वो उसके बारे में जानकारियाँ आपको प्रकट करता है और आपको लगता है वो सपना आया। नहीं, आपके ऊपर कोई देखभाल कर रहा है, कोई ध्यान रखा है और वो आपके सोच को पकड़ लिया और वो सोच के अनुसार आपको चित्रीकरण बता रहा है। ओके, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लग कर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। वह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे में से सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है।
न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। राजा द्वारा दानियल का सम्मान। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। वाह वाह वाह, हालेलुया। देखा, तो आप परमेश्वर के संगति में जब रहते हैं, जादू टोना मूर्ति पूजा कोई भी हथियार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अटक जाता है वो, अटक जाता है वो। क्योंकि एक एरिया ऑफ लाइफ है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं और ना ही उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के संगति में समय बिताओ। आपके सामने घुटने टेकने के लिए लोगों को तैयार कर दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आप ध्यान रखिए, ये बादशाह है। ओके, ये अहरा गहरा इंसान है, ये बादशाह था। ओके, उसने घुटने टेक दिए, जिसने सारे लोगों को मार डालने का निश्चय दे दिया था, घोषणा दे दिया था, उसने घुटने टेक दिए। हालेलुया। महारथी लोग टेक देंगे घुटने, डोंट वरी, क्योंकि महारथी भी उतने ही हद तक जा सकते हैं जिस हद तक उनको परमिशन है। ओके, आगे का हद परमेश्वर का है। परमेश्वर के हद में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और कुछ उनके हल परमेश्वर के हद में पकड़ के रखे हैं। वो दुनिया घुमा ले, उस हद के अंदर जाकर परमेश्वर से कुछ निकाल के ला नहीं सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अंदर है, हमको निकाल कर लेना असंभव है, असंभव है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर हम परमेश्वर में, वचन कहता है तो प्रभु में, प्रभु तुझ में, यीशु मसीह तुझ में, तो यीशु मसीह के अंदर और पिता यीशु मसीह के अंदर, तुम लोग इकट्ठे एकत्रित एक दूसरे के अंदर, कैसे क्या शैतान आपको छीन सकता है? कैसे छीन सकता है? हालेलुया। परमेश्वर बलवान से भी ज्यादा बलवान है। आमीन। परमेश्वर बलवान से भी ज्यादा बलवान है। यही वजह है आपको बहुत बड़ा आत्मविश्वास अपने अंदर पकड़ लेना है कि ये वो परमेश्वर है जो भले भले महारथियों को घुटना टेकने को मजबूर कर देता है। ओके, भले भले महारथियों को घुटना टेकने को मजबूर कर देता है, क्योंकि ये महारथी का भी एक रास्ता है जिसको आगे जाने का कोई चांसेस नहीं है। समझा? जिसको आगे जाना असंभव है, मृत्यु के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है उनके लिए। समझ में आया? क्योंकि उनके पास और आगे जाने का रास्ता परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। अगर वो आपके सामने घुटना टेक दे, यीशु मसीह को प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह जानने के लिए वो घुटना टेक दे, खत्म, उनका रास्ता मिल जाएगा उनको, नहीं तो नहीं मिलेगा। बात करो मेरे से। समझ में आया? बात करो मेरे से। ओके, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मेरा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, उसके मुट्ठी में रहस्य रखा है जो तुम लोग खोल नहीं पाएंगे। हालेलुया। उसके मुट्ठी के अंदर पड़े हुए रहस्य सिर्फ मुझे मालूम कराएगा वो। आमीन। जिसके बारे में तुम लोगों को मालूम नहीं रहेगा। ऐसा आपको बोलना है शैतान के जगत को। ओके, जब भी आपका सामना शैतान के जगत के साथ होगा या कोई रति महारथी के साथ होगा, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ओके, कि जो मेरा परमेश्वर है, ओके, उसके मुट्ठी के अंदर रहस्य है, और वो रहस्य सिर्फ वो मुझे देगा, वो तुम लोग को नहीं देगा, वो मुझे देगा। ओके, और वही रहस्य तुम लोगों के लिए दी एंड रहेगा, मेरे लिए आगे जाने का रास्ता रहेगा। आमीन। तो आपको ध्यान रखना है, ये बातों को आप समझ जाना है। ओके, अगर उनको आगे जाना है, ये रहस्य चाहिए, तो यीशु मसीह को स्वीकारना पड़ेगा उनको। आमीन। और ये नबूकदनेस्सर ने स्वीकारा। हालेलुया। देखिए क्या बोल रहा है ये वचन, 46 वचन। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको
भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दनियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दनियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हकीम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। देखो, प्रधान बनने का अर्थ क्या होता है? उस जगह के गवर्निंग आपको आनी चाहिए। ओके, उस जगह की सरकार चलाना आपको आना चाहिए। ओके, वहां पर आत्मा का भी युद्ध रहने वाला है, शरीर का भी युद्ध रहने वाला है, मनुष्य से भी युद्ध आने वाला है। ओके, सृष्टि में से भी चैलेंजेस आने वाले हैं। आपको हैंडल करने का ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए उसका प्रधान होना जायज बना वहां पर। तब दनियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दनियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। तो इस प्रकार से चैलेंजेस दनियल का सामना किया और दनियल ने परमेश्वर के जोर लगाकर सबको हरा दिया है। आमेन। ये मेरा दनियल है। आमेन। ये हमारा परमेश्वर का दनियल है। आमेन। ये दनियल ऐसा है कि इसके अंदर की कला, इसके अंदर की हुनर, इसके अंदर की उत्कृष्टता परमेश्वर का एक्सीलेंट स्पिरिट के कारण था। ओके, ये एक्सीलेंट स्पिरिट शेर के मांद में भी उसको सुरक्षित रखा। ये एक्सीलेंट स्पिरिट उसके अंदर से मरते हुए लोगों को बचा लिया। फालतू में ये पंडित लोग सब मारे गए होते उस बादशाह के गुस्से के नीचे, लेकिन इसने जाके बीच में रास्ता खोल दिया। हालेलुया। ये तरीका है दनियल का। इसके वजह से उसका जो होशियारी है वो सिर्फ एक मसीही नाम से नहीं चलता है, उसका होशियारी सिर्फ एक यहूदी नाम से नहीं चलता है, उसने ऑल राउंड स्टडी करके रखा है। आमेन। वो जानता है यहूदी के दायरे क्या है। ओके, यहूदी कौन से हद तक अपने आप को शांत रखना है। जब बंधुआई करके लेकर गया उसको, तब परमेश्वर ने उसको बोला होगा शायद से, ओके, प्रार्थना किया होगा, क्योंकि उसका जिंदगी का तरीका ही प्रार्थना था। ओके, तो उसने प्रार्थना किया होगा, तो उसको बताया, परमेश्वर ने बताया होगा ऐसा कि जा, कुछ नहीं, प्रॉब्लम बंधवाई तो बंधवाई। कितनी बार हम लोगों को भी परमेश्वर बताता है, कोई बात नहीं, तेरे विरोध में प्लान प्लॉट तो कर दिए, कोई परवाह नहीं, तू जा आगे, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे वो लोग। तो ऐसे ही दनियल को भी बोला होगा, कोई बात नहीं, जाने दे, तेरे को खोजा बनाएंगे वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, तू जा आगे। ऐसा परमेश्वर ने उसको हियाव दिया होगा, तभी वो खोजा बना तो भी वो चुप रहा, है ना। वो चुप रहा, उसको कुछ किया नहीं, है ना। और फिर बाद में उसका जब खाने पीने का मामला आया, तब परमेश्वर ने उसको बोला होगा, भाई आवाज़ उठा तेरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के बारे में चुप नहीं रहना है तुझे, ठीक है। और जब सपना के बारे में, स्वप्न के बारे में जब हो गया कि मार डालने का समय आ गया, सबको मार डालना है, तब परमेश्वर ने बोला, चल आवाज़ उठा तेरा, तुझे मरना नहीं है और ना ही उन लोगों को मरना है। इसका हट गया है नबूकदनेस्सर का, थोड़ा हम लोग उसको बता देंगे सही रास्ता कहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से हमारा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, हमको कहाँ पे क्या करना है वो जीवित रोटी हमको देता है, जीवित रोटी। आमेन। वो जीवित रोटी है हमारा, जो आज के समय को हमको जो चाहिए ऑन द स्पॉट, वो हमको जो करना है वो हमको इंस्ट्रक्शन देता है और हमको उसमें से चलाता है। आप लोगों को लगता है ये गए, दिमाग खराब है इनका। नहीं, हमारा दिमाग खराब नहीं, हमारे स्वर्ग का परमेश्वर का दिमाग चलते हैं हम। आमेन। उसके दिमाग चलते हैं हमारे अंदर से। आमेन। उसके दिमाग की हम फसल है। आमेन। उसके दिमाग के हम कार्य है। आमेन। हालेलुया। तो मसीह जो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है, कॉलर टाइट कर लो अपनी, क्योंकि आपके अंदर का निकलने वाला स्रोत परमेश्वर की उत्कृष्टता का है। और जब उत्कृष्टता का है तो कुछ नुकसान परमेश्वर आपको हाँ कर देने के लिए बोलता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन कुछ ऐसा समय आता है परमेश्वर बोलता है, हाथ भी लगाने नहीं देना ये विषय को उनको, ओके, छूने तक नहीं देना ये विषय को उनको, उनका रास्ता मोड़ दे। ऐसा समय भी लाता है परमेश्वर। आमेन। तो हमारा कुछ बिगड़ जाए
तब हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है जब परमेश्वर शांत है हम शांत है। जब परमेश्वर को उठना है तो वो उठ जाएगा और वो बता देगा जो करना है वो। आमीन। ये तरह से हमारा आत्मिक जीवन दानियेल के लाइफ में से हमको सीखना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये चैप्टर में से हमें ये सूचनाएं दी, ये अच्छी बातें आपने हमको बताया कि हम परमेश्वर तेरे राज्य के काम करने के लिए लायक बन जाए। ये सूचनाओं के द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन बदलता जाए। आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद यीशु, जैसा हमने मांगा उससे ज़्यादा आपने हमको दिया। आपको धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर और हमें परमेश्वर इस ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 17 चैप्टर 11 वर्स से 21 वर्स। 2 क्रॉनिकल 7 चैप्टर 8 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 11 वचन से 21 वचन और दूसरा इतिहास उसका 7-8 वचन अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे पर्सनल व्यक्तिगत समय में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हमने फैसला लिया था कि व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। यह ज़रूरी नहीं कि हमें व्यक्तिगत समय में ही पढ़ना चाहिए। आप अगर आपके ग्रुप डिस्कशन में इसको पढ़ना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे आपको चाहिए वैसे पढ़ सकते, कोई परवाह नहीं है। हमने व्यक्तिगत समय में इसीलिए इसको पढ़ना लेना है क्योंकि ये पर्सनल कैरेक्टर हमारा तैयार करेगा। हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा हमारे गुणों को तराशेगा। जिस तरह से परमेश्वर चाहता है उस तरह का एक्सेलेंट स्पिरिट, उत्कृष्ट आत्मा से हमको भरेगा वो। और ये होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। निश्चित हमने परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का, सच्चाई के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।